جی ماریا آج آپ سٹارٹ کریں میٹنگ. جی ہاللویا. خدا ان کی تعریف ہو. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جس نے بخش دیا تاکہ ہم پھر سے اکٹھے ہو سکیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. تو ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے. اور میری ریکویسٹ ہے بھائی انوک سے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کی دعا کریں. بھائی ہنوک خداوند کی شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کریں گے. ہنوک بھائی کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہم دعا کرتے ہیں. وہ شاید وہ ابھی سیٹ نہیں ہے. خدا قدوس رب الافاج تو جو قادر مطلق خدا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا تو جو رحیم اور کریم باپ ہے، تو جو یہوہ پاک خدا یہوہ یری، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے تو نے بخشا کہ خدا ہم تیری حضوری میں آ سکیں، ہم تجھے مبارک کہہ سکیں، ہم تیری ورشپ کر سکیں، ہم خدا تیرے نام کو عزت و جلال دے سکیں. ہم ساری میٹنگ کو، سارے ماحول کو خدا، ساری ورشپ کو، کلام کو خدا ابھی سے خدا ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرا رحم، تیرا فضل خدا ہمیں گھیرے رکھے، تیری شفقت خدا ہم پر ہو، اور تیری مہربانی اور تیری رحمت اور تیرا فضل خدا ہمارے چاروں طرف ہو. خدا لشکروں کے خدا اور اس سارے ماحول کو خدا ایک بار پھر میں تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں. خدا آ یہاں پر تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے یہاں پر خدا تو موجود ہو اور ہماری مدد و رہنمائی کرنا ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں. آمین. آمین. خدا ان کی شکر گزاری ہو. اس کے عظیم نام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. تو ہم خدا ان کی پرستش کریں گے. تو میری ریکویسٹ ہے بھائی ہنوک سے کہ وہ خدا ان کی پرستش کا آغاز کریں. یسوع مسیح کا زندہ جلالی بابرکت و فتح نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. آئیے گا زبور 4 گائیں گے اور اس کی مدح سرائی کریں گے. یہوہ اپنے چہرے دا ہساڈے یوت جو خوش ہیں اپنی دعائی پر، جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم دی فرما. تسی لوگوں میری عزت کرو گے، خاک قدتی کر رکھو گے جھوٹ نو پیارا، چلو گے جھوٹ دی راہ پر. جدوں تینوں پکارا میں تو سن سچائی دے ربا. یقی جانو یہوہ نے ہے چنیا دین ادارانو. یقی جانو یہوہ نے ہے چنیا دین ادارانو. جد سنو میں پکاراں گا، سنے گایو پکارانو. جد سنو میں پکاراں گا، سنے گایو پکارانو. جد تینوں پکارا میں
تو سن سچائی دے ربا نہ جانا پاپ دے نیڑے پر اس تو کم دے رہا نہ جانا چپ رہنا. آمین. آمین. خدا ان کی شکر گزاری ہو. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ہولی سٹی منسٹری کے لیے کہ خدا نے اس منسٹری کو زمین پر رکھا ہے تاکہ ہم سارے مل کے خدا ان کی پرستش کر سکیں. اور ہم ان سارے ممبرس کے لیے بھی خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جو میٹنگ جوائن کرتے ہیں. اور آواز نہیں آ رہی. ہاللویا. اب آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، پہلے بھی آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم خدا ان کی پرستش میں آگے بڑھیں گے اور گیت گائیں گے. ہمیشہ تک رہے گا تخت تیرا خداون تو ابد تک بادشاہ ہے. ہاللویا. ہمیشہ تک رہے گا تخت تیرا خداوند تو ابد تک بادشاہ ہے. عدالت کے لیے تو تخت پر ہے، تیرے آگے خدا سارا جہاں ہے. تو ہی انصاف دنیا کا کرے گا، سچائی سے مسیحا کام لے گا. تو ہی انصاف دنیا کا کرے گا، سچائی سے مسیحا کام لے گا. سبھی قومیں تیرے آگے ہوں حاضر، خداوند راستی سے تو بھرا ہے. سبھی قومیں تیرے آگے ہوں حاضر، خداوند راستی سے تو بھرا ہے. ہمیشہ تک رہے گا تخت تیرا خداوند تو ابد تک بادشاہ ہے. اٹھاتے ظلم جو دکھ سے بھرے ہیں، تو اونچا برج بھی ان کے لیے ہے. اٹھاتے ظلم جو دکھ سے بھرے ہیں، تو اونچا برج بھی ان کے لیے ہے. دل و جاں سے جو لیتے نام تیرا، مصیبت میں تو ان کا آسرا ہے. دل و جاں سے جو لیتے نام تیرا، مصیبت میں تو ان کا آسرا. ہمیشہ تک رہے گا تخت تیرا خداوند تو ابد تک تجھے جو ڈھونڈتے طالب تیرے ہیں، کبھی بھی ان کو تو بھولا نہیں ہے. خداوند کی
करो तारीफ सारे वही सिय्योन में, तारीफ सारे मुसीबत सिय्योन में, वही जिंदा खुदा है, हमेशा तक रहेगा तख्त तेरा, खुदावंद तू अबद तक बादशाह है। हालेलुया, आमीन। खुदावंद का तख्त हमेशा तक कायम रहेगा, उसकी बादशाही हमेशा तक कायम है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी मोहब्बत, उसके फजल के लिए और उसके तख्त के लिए जो हालेलुया, उसका तख्त जो लगा हुआ है। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और अंकल फयाज के साथ मिलके हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया, अंकल फयाज, पास्टर फयाज के साथ हम मिलकर खुदावंद की वर्शिप करेंगे। जलाल दा बादशाह है, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, रब जो जंग विच है जोरावर, वो बादशाह जलाल दा, रब जो जंग विच है जोरावर, वो बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो, जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा, लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो, जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आमीन आमीन आमीन।
हमारा खुदावन बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हम एक और गीत गाएंगे, खुदावन की प्रस्तुति करेंगे। तो आंटी नुसरत गा सकती हैं तो वो खुदावन की प्रस्तुति करें। अदरवाइज अगर कोई दूसरा गीत गाना चाहता है तो वो गीत गाए, उसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। सिस्टर नुसरत ड्राइव कर रही हैं, वो गीत नहीं गा सकती तो ठीक है। तो अंकल फयाज ही अगर और गीत गाना चाहते हैं तो वो गाएं। नसे के किधर जावा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नसे के किधर जावा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा मैं चढ़ जावा जे असमाना दे उते ओते है तू ही मैं चढ़ जावा जे असमाना दे उते ओते है तू ही बचावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू ही बचावा बिस्तरा पाताल दे विच ओते है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा समंदरों पार जाओ तरा सुबह दे पंखनू पहला समंदरों पार जाओ तरा सुबह दे पंखनू पहला ते ओते भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा ते ओते भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी तेरा हथ सजा उस पाताल दे विच ओ मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन हालेलुया। हम खुदावन से बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। हमारा खुदावन हर जगह मौजूद है, चाहे कहीं भी चले जाएं हमारा खुदावन हमारे साथ होता है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हम वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। तो एक अंतरा मैं गाऊंगी, कोर्स गाएंगे और उसके बाद हम भाई हनूक के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए और खुदा की खात्मा के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे
संवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे, भर मुझे भर खुदा रू, मुझे भर मुझे भर खुदा रू, मुझे भर, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। आमीन, हालेलुया। खुदावन का कलाम हमें गूंथता, हमें संवारता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के लिए, उसके जिंदा कलाम के लिए। और वक्त है दुआ करें। भाई हनोक से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो खुदा की खादमा और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद अपनी खादमा को अपने जलाल में अपनी रूह से खुदावंद इस्तेमाल करे। हम सब के लिए कलाम बरकत का बायस हो। हालेलुया। भी खुदा दिल की गहराइयों से तेरी हुजूरी में आते और तुझे झुककर सजदाए तज़ीम पेश करते हैं। मेरे बादशाह, मेरे खुदा, मेरे मालिक, तेरी बारगाह में आकर खुदा बड़े एहतराम के साथ अपनी ज़ात, इल्म, पर्सनालिटी और ज़ात की नफ़ी करते हुए अपने आप को खाली और सरेंडर करते हैं। पाक खुदा, खुदा वक्त है कि हम तेरे कलाम को सुने। पाक खुदा तेरा कलाम जो हर सुबह ताज़ा है। पाक खुदा बेशक पाक खुदा तेरे कलाम के अंदर हर एक बात रकम है। पाक खुदा आज भी इन सत्रों के पीछे तेरे कलाम की कुदरत, तेरी मोहब्बत, तेरा फजल, तेरा तरस और तेरा रहम हमें नजर आता है। पाक खुदा अपनी बंदी के साथ होना। पाक खुदा कमाल दिलेरी का रूह देना। पाक खुदा जब तक तेरी बंदी तेरी खदमा ममसू खुदा बोले, हम सबों के लिए खुदा तेरा आसमान खुला रहे। पाक खुदा सुनने वाले कान, समझने वाला जहन और कबूल करने वाला दिल अता कर। पाक खुदा ताकि तेरे कलाम को सुने, समझें और पाक खुदा कबूल करें और उस पर सोगुना अमल करें और फल लाएं। पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। अब वक्त है आमीन। हम खुदा की आवाज को सुने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आंटी नसरीन से, खुदा की खादमा से कि वो आए और खुदा के कलाम को शेयर करें। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन यीशु मसीह जो कि सलामती का शहजादा है, जो कि कादिर मुतलक खुदा भी है, जो कि इकलौता बेटा भी है, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी है। उसने अपने पाकरू के वसीला से हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसके कलाम को समझ सके, उसके कलाम की बातों को जान सकें। जैसे कि उसने कहा कि वो तुम्हें गहराई की बातें सिखाएगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हें और ज्यादा तह की बातें बताएगा, जो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। बेशक खुदावंद पाकरू अच्छा उस्ताद है। पाकरू हम तुझे वेलकम करते हैं। पाकरू हम तुझे मुबारक कहते हैं। पाकरू हम तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही कादिर मुतलक खुदा है, तू ही खुदावंद खुदा है और तू ही लश्करों का खुदा है। और तेरी ही हिकमत से हम सब कुछ बोलते हैं, तेरी हिकमत से ही हम सब कुछ करने के काबिल होते हैं। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस काबिल ठहराया कि हम इस कलाम को हम बयान कर सकें, कलाम के भेदों को समझ सकें और बयान कर सकें। पाकरू मेरी मदद और रहनुमाई कर। मैं ना बोलूं बल्कि तू मेरे अंदर से होकर बोल और अपने लोगों से कलाम कर। इस खास वक्त के लिए, इस खास मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है,
اور بہت سے سننے والے لوگوں کے لیے بھی खुदावंद یہ कलाम बरकत और मुबारक हो, बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो खुदावंद, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी, आज हम बात करेंगे खुदावंद के कलाम के मुताबिक। अ, अभी कल 26 तारीख को हमने देखा कि ब्लड मून था, जिसको सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया। चांद सारे का सारा सुर्ख हो गया, जो कि पाकिस्तान में भी देखा गया। हमारे तो खैर यहाँ पर दिन होता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते, लेकिन जिन मुल्कों में रात है वो उस चांद को जो है उसको देख सकते हैं, ब्लड मून को देख सके हैं वो लोग, और उन्होंने उसको देखा है। हम सिर्फ नेट पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उस वक्त दिन का टाइम होता है, इसलिए हम इस चीज को नहीं देख पाते। तो मेरे अजीजों, इसके लिए बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, बहुत सारी बातें कही भी जाती हैं और बयान भी किया जाता है। इससे पहले भी बहुत ज्यादा ब्लड मून हुए हैं, और खास ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्लड मून है, ये खास ब्लड मून है, जिसका जो है वो हर कौम को इंतजार है। मेरे अजीजों, मैंने देखा है कि बहुत सारी हर कौम जो है इस ब्लड मून को, इस सुपर फ्लावर ब्लड मून को जो है वो अपने अपने उस इंटरप्रिटेशन कर रही है, अपने अपने हवाला से देख रही है, अपने अपने नजरिया से देख रही है कि जो ब्लड मून है वो उनके अकायद के मुताबिक कैसा है। बहुत सारी कौमें उसको अपने हिसाब से देख रही है, लेकिन जो चीज मैंने उन सब में मुश्तरक देखी है, वो मैंने ये देखी है कि वो ये कहते हैं कि ये जो ब्लड मून है, ये खुदावंद यीशु मसीह के आने की अलामत है, कि यानी अब खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द जो है वो आने वाला है। तो मेरे अजीजों, हम जो है हम हमारे पास जो खुदा का सच्चा कलाम है, जो खुदा ने हमें ये सारी बातें पहले से ही बता दी हैं, तो हम बाइबल में से ये देखते हैं कि ये जो ब्लड मून है, इसका बाइबल जो है उसको किस तरीके से हमें बताती है कि इसका क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा, और उस वक्त हालात कैसे होंगे। तो हम इस पे बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुदा के अपने कंट्रोल में है, खुदा के अपने हाथ में है, इसलिए हम किस कोई वक्त या कोई टाइम पीरियड या कोई हम टाइम जो है वो नहीं दे सकते, हमको कुछ नहीं बता सकते कि कब, कहाँ, कैसे होगा। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि वक्त बहुत करीब है, वक्त बहुत नजदीक है। तो इसलिए हम इतना कह सकते हैं, हम जान सकते हैं कि जो बाइबल की बातें हैं वो सच्ची हैं, और जो कुछ भी होने जा रहा है वो खुदावंद की मर्जी से होगा। और खुदावंद अपने लोगों के लिए जो है वो जो उसकी मखलसी की राह देखते हैं, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। तो उसके लिए हम बाइबल में से देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है, और इसमें से मुख्तलिफ हवाला जात हैं जो मतलब बयान करते हैं। तो हम उसमें से पहले देखते हैं कि लूका की अंजील, उसके जो है उसके 21 बाब, और 21 बाब की हम 25 आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो अगर आप कोई पढ़ने में हमारी रहनुमाई करे, लूका की इंजील उसका 21 बाब उसकी 26 आयत से 28 आयात मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। 3 आयात हम पढ़ेंगे। अगर कोई भाई पढ़ना चाहता है तो वो प्लीज हमारी रहनुमाई करे। तो उसमें हम ये देखेंगे मारिया, आप पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 21 बाब उसकी 25 से 28 आयात तक। चले मैं पढ़ती हूँ। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समुंदर उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएगी और डर के मारे घबरा जाएंगी और डर के मारे, और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगे। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर भी यह बात जो है खुदा यीशु मसीह जो अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि आखिरी जमाना में हालात कैसे होंगे। आखिरी जमाना में जब मुसीबत का दौर शुरू होने वाला होगा, तो उस वक्त जो है वो क्या कुछ जमीन पर होगा। तो उसके बारे में है कि सूरज और चांद जो है वो और सितारों में जो है वो
निशान जाहिर होंगे और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी। कौमें जो हैं बड़ी तकलीफ में होंगी, लेकिन हम जो खुदावंद के लोग हैं, हम जो है खुशी मनाने का वक्त होगा हमारे लिए, क्योंकि हम में जो है, क्योंकि हमारे लिए ये बड़े ही फख्र का टाइम होगा कि हमारी मखलसी जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब खुदा यीशु मसीह पूरी दुनिया पे अपने आप को जाहिर करने वाला है, एक बादशाह की हैसियत से जो है वो आने वाला है। इसके लिए पहले कि हम इसमें बात करें, हम मुख्तलिफ हवालाजात को पढ़ लेते हैं जो इसके इसके बारे में लिखे गए हैं। तो हम अगर मत्ती की अंजील उसकी 24 बाब की उसकी 29 आयत में देखें, तो वहां पर भी लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर भी हम ये देखते हैं 29 और 30 आयत में यहाँ पर भी वही बात बयान की गई है जो लूका की इंजील में बयान की गई है कि हम सूरज और चांद और सितारे जो हैं वो अपनी रोशनी जो है वो देना बंद कर देंगे और आसमान की जो कुव्वतें हैं वो हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर जाहिर होगा और कौमें उसके सबब से जो हैं उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी। अब यहाँ पर भी हमने यही देखा कि यहाँ पर भी यही बयान किया गया। अब हम पुराने अहदनामा में अगर हम जाएं, तो पुराने अहदनामा में हम ये देखते हैं कि वहां पर जो है वो यसाया नबी वो भी यही बात करता है। हम यसाया नबी का हवाला पढ़ लेते हैं, उसके 13 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है। हम 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। यसाया 13 बाब उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, और देखो खुदावंद का वो दिन आता है जो गजब और कहर शदीद में सख्त दुरुस्त है, ताकि मुल्क को वीरान करे और गुनहगारों को उस पर से नेस्त और नाबूद कर दे, क्योंकि आसमान के सितारे और ख्वाके बेनूर हो जाएंगे और सूरज तलु होते होते तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। इसी तरह से अगर हम ये देखें योएल नबी के सहीफे में देखें, तो योएल नबी के सहीफे में भी चांद के बारे में, उसके सुर्ख होने के बारे में जो है वो बयान किया गया है। तो योएल नबी के सहीफा में हम ये देखते हैं उसके 2 बाब में और उसकी 20 आयत में लिखा है, योएल नबी का सहीफा उसके हम ये देखते हैं उसकी 11 आयत में लिखा है, और 10 और 11 हम पढ़ते हैं। उनके सामने जमीन आसमान कांपते और थरथराते हैं, सूरज और चांद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं, और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है, क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाला जबरदस्त है, क्योंकि खुदावंद का रोजे अजीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि योएल नबी जो है वो भी ये बात करता है कि मतलब खुदा का जो रोजे अजीम है वो बहुत जल्द आने वाला है, और खुदावन के रोजे अजीम के बारे में जो है अमाल की किताब में पतरस रसूल जो है वो भी योएल नबी के इस सहीफे को वो बयान करता है, और इसका वो अपनी तकरीर में जो है वो बयान करता है, और वो ये बात करता है कि किस तरह से जो है आखिरी दिनों में क्या होगा, जैसे उसने योएल नबी का जो है सहीफा जो है वो बयान किया है। तो हम अमाल उसके 2 बाब उसकी हम 16 आयत से हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी, और मैं ऊपर आसमान
पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। पेशतर इसके कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखी, मुख्तलिफ हवाला जात को हमने देखा जिसमें 2-3 बातें जो हैं वो बड़ी ही मुश्तरक बयान की गई हैं, जिनके बारे में खास जो है वो जिक्र किया गया है। पहली बात कि चांद और सूरज का तारीक हो जाना या सूरज का खून बन जाना, सूरज का जो है वो ब्लड मून हो जाना, और इसके बारे में यहाँ पर बाइबल में बार बार इसका जिक्र किया गया है और ये खास आखिरी वक्त और आखिरी जमाना को जाहिर करता है। और दूसरा जो इसमें ये बात करता है वो ये कहता है कि खुदावंद का रोज़े अजीम जो है वो जल्द आने वाला है। ये सारे हवाला जात पे हमने पढ़ा, इसका मतलब है कि अब खुदावंद का रोज़े अजीम बहुत जल्द जो है वो आने वाला है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि खुदावंद के रोज़े अजीम के साथ साथ एक और बात जो बड़ी वाज़ेह बयान की गई है वो ये बयान की गई है कि कौमें जो है इसके सबब से छाती पीटेंगी। कौमें जो है उनके लिए ये बड़ी ही मुसीबत का टाइम होगा, क्योंकि जो वो कौमें जिन्होंने अभी तक खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो कौमें जो हैं अब रोएंगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह अब इंसाफ करने के लिए आ रहा है, अब अदालत करने के लिए आ रहा है, क्योंकि अब वो बादशाह की हैसियत से आ रहा है। और वो कौमें जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को सताया या खुदा यीशु मसीह के लोगों को सताया या खुदा यीशु मसीह की नजात को कबूल नहीं किया, उन कौमों के लिए ये बड़ी ही तकलीफ का वक्त होगा। और वो लोग जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, उनके लिए ये बड़े ही फख्र की बात होगी और उनको बड़े ही फख्र के साथ खड़े होना है और अपने ईमान पर खड़े होना है कि हमारी मखलसी जो है वो करीब है। यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारा खुदा यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो हकीकत है वो टल नहीं सकती कि अब खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा निजात दहिंदा सिर्फ खुदा यीशु मसीह है, हमारा ही नहीं बल्कि तमाम कौमों का है। और वो तमाम लोग जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा अभी तक कबूल नहीं किया, वो छाती पीटेंगी, वो रोएंगी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो रोती हुई आएंगी और वो कहेंगी कि हमें अपने खुदावंद के पास ले चलो, हमें से उनके खुदा के पास ले चलो, हमें अपने खुदावंद के पास ले चलो, क्योंकि वही सच्चा खुदा है। तो बहुत सारी कौमें जो हैं वो इस बात के लिए रोएंगी, छाती पीटेंगी कि काश हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आते, काश हम उसको अपना जान दहिंदा कबूल कर लेते। तो मेरे अजीजों, हमारे लिए ये बड़ी फख्र की बात है। इसके लिए योएल नबी जो है वो बड़ी अच्छी बात बयान करता है। उसमें हम ये देखते हैं कि योएल नबी क्या कहता है। वो ये कहता है कि फिर भी अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। वो अपने उसके 2 बाब उसकी 12 आयत में कहता है कि लेकिन खुदावंद फरमाता है, अभी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। तो मेरे अजीजों, योएल नबी के सहीफा के मुताबिक खुदा अभी भी ये फरमाता है कि अभी भी वक्त है कि हम गिरिया जारी करते हुए, हम रोजा रखते हुए हम उसकी हजूरी में आए, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करें, हम अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करें, ताकि हम उस मुसीबत से, उस गजब से बच सकें। क्योंकि हमारा खुदावंद जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो हम पर रहम करेगा और हम पर अपनी बरकत नाजिल करेगा और हमें अपनी नजात में दाखिल करेगा। ब्लड मून, हाँ, इस बात की निशानी है, इस बात की अलामत है कि हम दुनिया में खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा खुदा यीशु मसीह की मनादी करें, ताकि हम खुदा यीशु मसीह के जो गवाह हैं वो अपने काम में सुरखरू हो सकें, ताकि हम उसके सामने सुरखरू होकर खड़े हो सकें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि कौमों में उस वक्त बहुत ही तकलीफ होगी, कौमों में बहुत ही ज्यादा जो है वो मुसीबत का टाइम होगा, वो छाती पीटेंगी, वो रोएंगी, क्योंकि हमारा खुदावंद
जो अजीम खुदावंद है, उसका रोज़े अजीम जल्द आने वाला है, और फिर उसके आने के सबब से कौमों को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ेगी। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें जो है, हमें अपनी मखलसी के लिए शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि दुनिया में हालात कुछ भी हों, हमारा नजात दहिंदा, हमारा खुदावंद बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। और ये जो ब्लड मून है, ये तमाम उन कौमों के लिए निशानी है जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानती, जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं किया। ये ब्लड मून उन लोगों के लिए निशानी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि आसमान पर बहुत से अजीब निशान दिखाए जाएंगे, जाहिर होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि खुदावंद का रोज़े अजीम बहुत जल्द आने वाला है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी हो उसके जिंदा कलाम के लिए, हम शुक्रगुजारी करते हैं। और शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदावन हमारा हमेशा अपने कलाम को नाजिल करता है और कौमों को रहाई बख्शता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी हो तेरे जिंदा कलाम के लिए जो तूने अपनी खादमा के वसीले से हमसे किया है। फजल बख्श के तेरा जिंदा कलाम खुदावन वो उन सारे लोगों तक पहुंचे जो इस रिकॉर्डिंग को सुने, दिल से खुदावन उस पर ईमान लेके आए और खुदावन जिंदगियां आज़ाद हों, बहाल हों, और ये कलाम और खुदावन जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सफल ला सके। खुदावन अपना हाथ अपने लोगों पर बढ़ाना खुदावन, और तेरी खादमा के लिए भी दुआ करते हैं। यीशु के नाम में तेरा हाथ तेरी बेटी पर भरे खुदावन, और हमेशा तेरे कलाम की सच्चाइयों को दूसरों तक लेके जाएं और दुनिया की वसत तक खुदावन तेरे कलाम की मुनादी करें और बहुत सी जिंदगियों को बचाने का वसीला बन सके। खुदावन अपनी बच्ची पर, अपनी बेटी पर खुदावन और ज्यादा अपने कलाम के भेदों को जाहिर कर, ताकि तेरे कलाम की सच्चाइयों को बहुत सी जिंदगियों को बचाने का वसीला बन सके। इस कलाम की सच्चाइयों के वसीले से तेरा शुक्र हो, सारी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। जी, अब अगर किसी के पास कोई टेस्टमनी है तो वो शेयर कर सकता है। कोई गवाही हो। आप अपनी गवाही को शेयर करें। आप बड़ी मुसीबत से, तकलीफ से आप बाहर आई हैं। जी, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरा दांत का बड़ा मसला था। कोई 1.5 हफ्ता मैंने बड़ी मुश्किल गुजारा। मुंह स्वेल हो चुका था, बोला नहीं जाता था, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, तो काफी मुश्किल थी। दुआएं करते रहे सारे, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो के खुदा ने इस दर्द से निजात बख्शी है मुझे, और मैं खुदा उनकी प्रस्तिश कर सकती हूँ, खुदा के कलाम को पढ़ सकती हूँ। सारा खुदा उनकी शुक्रगुजारी, सारा इज्जत जलाल खुदा उनके नाम को है। तो ये मेरी गवाही थी कि खुदावन ने उससे रहाई बख्शी है, सारी पेन से, सारे दर्द से, इन्फेक्शन से खुदावन ने आज़ाद किया है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए। तो अभी वक्त है कि हम अपनी दरखास्तें खुदा के हुजूर में रखें। तो अगर किसी के पास कोई रिक्वेस्ट है वो हमें दे सकता है, ताकि हम मिलके खुदावन के हुजूर में उन दरखास्तों को रख सकें। अगर किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो दे दे। हम प्रे करेंगे। अपने जो इवेंट्स आ रहे हैं 11 अगस्त को, वो जो है संडे स्कूल का वो जो प्रोग्राम है 11 अगस्त को या क्या जून को, जी उसके लिए प्रे करेंगे। और यूथ जो फेस्टिवल हम करना चाह रहे हैं उसके लिए करेंगे कि खुदा तमाम नौजवानों को वो आए जिनको खुदा वाकई ही हमारे साथ जोड़ना चाहे, और हम एक बड़ी टीम होकर यीशु मसीह की गवाही सुने। जैसा कि अभी हमने सुना कि खुदा चाहता है कि ये आखिरी दौर है कि कौम में मुश्किल में आएंगी, और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा काम यीशु मसीह का करें।
ہاں جی، اور کوئی ریکویسٹ ہو تو بتا سکتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی ہیں، میرے چاچو کا بیٹا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ بڑے بڑے برے طریقے سے مطلب منہ کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، تو مطلب دانت بھی اور سارا مطلب کافی پرابلم ہے. تو اس کا آپریشن ہے، تو ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. تو ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ خداوند اپنا رحم کرے اور آپریشن کامیاب ہو سکے. تو میری ریکویسٹ ہے انکل فیاض سے کہ وہ ان ساری دعاؤں اور ریکویسٹوں کے لیے، درخواستوں کے لیے دعا کریں. انکل فیاض سن رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ نہیں ہے، تو ہم آنٹی نسرین کے ساتھ مل کر ان ساری درخواستوں کے لیے دعا کریں گے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ابھی تھوڑا سا پرابلم ہے دانت میں، مطلب وہ نکال تو دیا ہے لیکن ابھی تھوڑی سی میرے ساتھ زبان لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی پین ہے ابھی. تو اس کے لیے دعا کیجیے گا کہ خداوند رحم کرے اور انفیکشن نہ ہو. کوئی میڈیسن میں لے رہی ہوں، تو باقی خداوند سب ٹھیک کرے تاکہ میں صحیح طرح سے بول سکوں. ابھی ہوتا ہے میرے ساتھ زبان کا تھوڑا سا ساتھ لگتی ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ کے کزن کا نام کیا ہے جس کے لیے آنٹی دعا نسرین کرنی؟ کے ساتھ اس کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا، اس کا نک نیم مجھے یاد ہے. تو میرے چونکہ دور کے ہیں چاچو، تو چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے لیے بس اس کا نام ہے شانی، شاید ہاں جی شانی کچھ اس طرح کا نام ہے. تو اس کے لیے دعا کیجیے گا. چلے ہم دعا کرتے ہیں. ہم خدا ان کے حضوری میں آتے ہیں، ہم سب متفق ہو کر ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی حضوری میں آتے ہیں، اور ہم ساری اپنی درخواستیں ان کے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ بے شک خداوند ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہماری آواز کو سنتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. وہ ساری باتوں کو پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، ہم اس سے بات کریں، ہم اس سے اپنی تکلیفیں شیئر کریں، ہم اپنی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دیں، سارے منصوبے ہم اس کے سامنے رکھ دیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں ٹھہریں اور ہم اس سے بات کریں. تو پاک روح کے وسیلہ سے، پاک روح کی مدد سے، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے ہم خدا باپ کی حضوری میں آتے ہیں، اور خدا باپ کی ہم منت کرتے ہیں کہ ہمارے ہولی سٹی منسٹری کے اور سارے ہمارے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ہمارے ساتھ، ہم ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور جو بھی منصوبے ہم نے رکھے ہیں خداوند کے، ہم لوگوں کے اندر شعور پیدا کر سکیں، تیرے کلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں. خداوند لشکروں کے خداوند، ہم یوتھ کانفرنس کو، خداوند بچوں کے کوئز پروگرام کو، خداوند جو ہمارے آگے پلان ہے خداوند، اور خواتین کے خداوند، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند تیرے لیے تیار کر سکے، تیرے خادم تیار کر سکے، تیرے لوگ تیار کر سکے خداوند. کیونکہ ہم ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن خداوند جہاں جہاں بھی وہ جائیں خداوند وہ تیرے نام کی گواہی دے سکیں خداوند. اس لیے خداوند ہمارے ساتھ خداوند ایک ہجوم کو خداوند ہمارے ساتھ تیار کر، ایک لشکر کو خداوند ہمارے ساتھ تیار کر، جیسے تو نے خداوند مجھے رویا میں دکھایا ہے خداوند، تو جیسے مجھے دکھاتا ہے خداوند، جس طرح سے تو مجھے دکھاتا آیا ہے خداوند. اب اتنے لوگ خداوند تو مہیا کرو، اور میں ایمان رکھتی ہوں خداوند کہ تو جو کچھ بھی ہمیں دکھاتا ہے، تو ہمیں بتاتا ہے، تو اس کو پورا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے خداوند، اور تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور تو کرے گا خداوند. اب وقت ہے خداوند، ہم اس کے لیے خداوند اب خداوند تیرے لوگوں کو مانگتے ہیں خداوند، اس ہجوم کو ہمیں دے خداوند، ان لوگوں کو دے خداوند، اور ایسا ہجوم خداوند جو تیری محبت سے بھرا ہو، جو تیرے خداوند تیرے فضل سے بھرا ہو، تیرے پاک روح سے بھرا ہو، تیری قدرت سے بھرا ہو خداوند لشکروں کے خداوند، تاکہ پوری دنیا میں ریوائول لے کر آ سکے ہم، تاکہ ہولی سٹی منسٹری پوری دنیا میں خداوند پھیلے، اور خداوند پوری دنیا میں خداوند ہم ایک خداوند کلام کا ریوائول لے کر آئے، تیرے خداوند تیرے کلام کو خداوند دنیا میں پھیلا سکے خداوند، اور خداوند تیری نجات کا کام خداوند دنیا میں پھیلے خداوند. تیری نجات کا منصوبہ جو خداوند تو نے ساری دنیا کے لیے تیار کیا، ہر ایک زیرو انسان کے لیے تیار کیا، تاکہ کوئی بھی رہ نہ جائے، سب نجات پائیں، سب نجات کو حاصل کریں خداوند لشکروں کے خداوند. تو اس لیے خداوند تو ہمیں تیار کر، بہت سارے لوگوں کو تیار کر ہمارے ساتھ، ہمارے گھرانوں کو ہمارے ساتھ تیار کر،
اور بہت سارے لوگ خداوند جو تیری حضوری میں بڑھنا چاہتے ہیں، جو صرف اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ خداوند تیرے نام کے لیے خداوند آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ایسے لوگ مانگتے ہیں خداوند جو ہمارے ساتھ روح میں ایک ہوں، جو ہمارے تمام منصوبوں میں ہمارے ساتھ اتفاق کریں خداوند، جو خداوند ہمارے اس بات کو سمجھ سکیں جو خداوند تو ہمارے دلوں میں رکھے، ہمیں روح میں ایک کرنا، ہمیں روح میں متحد کرنا خداوند، تاکہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے، ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں خداوند۔ اور لشکروں کے خداوند نام اس چھوٹے بچے کو خداوند شانی کو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ساری ہڈیوں کو خداوند، اس کے منہ کی ہڈیوں کو ہم یسوع مسیح کے نام میں ابھی ان کو جڑ جانے کا حکم دیتے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام میں اس کے سارے خداوند جو بھی بروکن خداوند بونز ہیں وہ یسوع مسیح کے نام میں واپس جڑ جائیں اور وہ بچہ شفا پائے خداوند۔ ماریا کے لیے خداوند ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں، بے شک خداوند لاسٹ ویک میں اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے خداوند، تیری بندی بہت تکلیف میں رہی ہے خداوند، لیکن آخر خداوند تو نے اس کو تکلیف کو برداشت کرنے کا فضل بخشا، اور خداوند وہ اس تکلیف میں بھی تیری حضوری میں کھڑی رہی ہے، اس تکلیف میں بھی خداوند وہ تیری حمد و ستائش کرتی رہی ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور خداوند اب تو نے اس کو خداوند اس تکلیف سے نجات دی ہے خداوند، تو ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور لشکروں کے خداوند جو تھوڑی باقی ماندہ بھی خداوند تکلیف ہے اس کو بھی ہم یسوع مسیح کے نام میں جلا کر بھسم کرتے ہیں خداوند۔ فروبل کے ساتھ ہو، فروبل کے گلے کو خداوند، لشکروں کے خداوند اس کے پورے بدن کو میں تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، بے شک خداوند وہ تیرا بندہ خداوند تیرا بچہ ہے خداوند، تو اس پر اپنا رحم کر خداوند، اس کی ساری بیماریاں یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں خداوند، وہ کمزور بدن کے ساتھ خداوند نہیں بلکہ قدرت کے ساتھ قوت کے ساتھ خداوند تیری حضوری میں کھڑا ہو خداوند، اس کے سارے بدن کو اس کے گلے کو خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتی ہوں، اور ابلیس کے سارے منصوبوں کو ہم جلا کر بھسم کرتے ہیں خداوند، اور خداوند اس کو ایک بار پھر کھڑا کر کے وہ خداوند قوت سے قدرت سے کھڑا ہو سکے خداوند، جسمانی طور پر اسے قوت دے خداوند۔ بھائی صدیق کو خداوند جو کہ بیمار ہیں خداوند، بھائی صدیق کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، ابلیس کے سارے منصوبوں کو ہم یسوع مسیح کے نام میں جلا کر بھسم کرتے ہیں، اور ابلیس کے سارے منصوبے خداوند تیرے نام سے خداوند بھسم ہوں، اور خداوند وہ بندہ شفا پائے، ہر قسم کے ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ کے پرابلم کو یسوع مسیح کے نام میں ہم جلا کر بھسم کرتے ہیں، تیرا بندہ قوت پائے، جسمانی طور پر اپنے بندے کو قوت دے اور اسے کھڑا کر، تاکہ وہ تیری خدمت کے لیے خداوند دوبارہ کھڑا ہو، اور خداوند تیری خدمت کو پہلے سے زیادہ زور و شور سے کر سکے خداوند۔ لشکروں کے خداوند اس طرح سے بھائی فیاض کے لیے، ان کی ساری فیملی کے لیے خداوند تیری رحمت تیری شفقت مانگتے ہیں خداوند، بھائی حنوک کو تیرے ہاتھوں میں دے دے، ان کے لیے نئے جوڑے کے لیے خداوند تو ان کو اولاد جیسی برکت دینا خداوند، اور اس خداوند جوڑے کے وسیلہ سے ان کے گھرانے میں اور زیادہ برکت آئے خداوند، اور ان کو خداوند اپنی حضوری میں دونوں ہسبینڈ وائف کو خداوند تو بڑھا خداوند، ہمارے بچوں پر تیرا فضل ہو، سسٹر نصرت کے ساتھ ہو، ان کے بچوں پر تیرا فضل ہو، اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں اور جتنے بھی سننے والے ہیں خداوند، ان سب کے لیے خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں، تیری بلیسنگز کو چاہتے ہیں خداوند، تیرا فضل انہیں ہمیشہ گھیرے رکھے خداوند، ان تمام لوگوں کو خداوند جو ہمارے خداوند اس ہماری ویڈیوز کو، اس پریئر میٹنگ کو خداوند، ڈیلی بریڈ کو خداوند جو دیکھتے ہیں خداوند، جو سنتے ہیں خداوند، ان کی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں خداوند، وہ یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں، اور یسوع مسیح کے نام میں خداوند وہ خداوند ان کے گھرانوں میں برکت آئے خداوند، خوشحالی آئے، تنگ دستی جاتی رہے، بیماریاں جاتی رہیں، تکلیفیں جاتی رہیں، پریشانیاں جاتی رہیں خداوند، اور ابلیس کے سارے منصوبے ان کے گھرانوں میں خداوند، ہر قسم کے بندھن جو بندھے ہوئے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹ جائیں خداوند، اور خداوند شفا پائیں، اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے، اور خداوند اپنے نام کے جلال کے لیے گواہیوں کو پیدا کر خداوند، ہم تیرے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ آمین یسوع مسیح کی آمین سپاہی آمین۔ سب ہوں گے۔ اے اے ہمارے ہمارے باپ، باپ تو جو تو جو آسمان آسمان پر ہے، میں، تیرا تیرا نام نام پاک ہونا جائے، جائے، تیری بات تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی تیری بات جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری ہمیں روز کی روز روٹی کی آج روٹی ہمیں دے، آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قضا کو معاف کیا، تو بھی ہمارے میں قرض تمہارے ہمیں قرض معاف سے کر، معاف کر ہمیں ہمیں آزمائش میں نہ آزمائش ڈال، نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے کہ بچا، برائی سے بچا، کیونکہ کیونکہ بادشاہی بادشاہ اور قدرت قدرت اور اور جلال جلال، ہمیشہ رہی ہے۔ آمین۔ آمین اسرائیل کی سلامتی ہو۔ آمین۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ مادر
अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शफकत हम सबके साथ, हमारे घरानों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा आप Amen. सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, खुदा आमीन। बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में। आमीन। Amen.